Good morning, student. Myself Chirag Sukani from Raufel VV College Vapi, and I am going to teach you fundamental of economics subject. Now, today in this session, we will start the second chapter, that is demand analysis. Now, chapter number 2 consists of mainly four part. That is demand analysis, elasticity of demand, demand forecasting, and the supply analysis. So, in chapter number 2, part 1, that is part A, demand analysis. Now, डिमांड एनालिसिस चैप्टर हम लोग को कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है, बिकॉज कंज्यूमर्स डिमांड करता है ना. ओके, सो पूरा डिमांड एनालिसिस चैप्टर वी हैव टू लर्न फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू. So today in this session we will discuss about the meaning and definition of demand, then difference between desire and demand, and third question is what demand function. Clear? So first of all, what do you mean by demand? Okay, now ये चैप्टर आपने शायद लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ ही लिया होगा, those who are from the commerce background. So first of all, what do you mean by demand? Demand means what? Quantity of commodity demanded at certain price at a given time and at a particular place. Okay, so demand का मतलब क्या होता है? Now demand यानी मांग, जो गुजराती मीडियम या हिंदी मीडियम है मांग बोला जाता है डिमांड को. So demand means what? क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड, यानी कितने क्वांटिटी कितने जत्थे में डिमांड है एट सर्टेन प्राइस एट अ गिवन टाइम एंड एट अ पर्टिकुलर प्लेस. देयरफॉर द टर्म डिमांड फॉर द प्रोडक्ट हैज ऑलवेज रेफरेंस टू दिस फोर वेरिएबल, दैट इज क्वांटिटी, प्राइस, पीरियड ऑफ टाइम इन द प्लेस. ओके, यानी डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट हैज ऑलवेज रेफरेंस टू quantity of the product, price of the product, period of time in the place. Clear? Therefore, any statement regarding demand for the product without reference to quantity, price, period of time and place is of no meaning in economics. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, देखो कि डिमांड फॉर टेलीविजन सेट इज 50,000 सेट, सो इट कैरीज नो मीनिंग इन इकोनॉमिक एनालिसिस. ओके, यानी टेलीविजन सेट का डिमांड 50,000 है. सो जो ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल है कि डिमांड फॉर टेलीविजन सेट इज वॉट 50,000 सेट, इट कैरीज नो मीनिंग इन इकोनॉमिक एनालिसिस, बिकॉज ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट में प्राइस नहीं है, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट में टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया है, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट में प्लेस मेंशन नहीं किया है, खाली क्या बोला? क्वांटिटी डिमांड. तो कहाँ पे डिमांड है, कितने प्राइस पे डिमांड है, कितने टाइम पीरियड के लिए डिमांड है, कुछ मेंशन किया नहीं है. सो जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है इट कैरीज नो मीनिंग इन इकोनॉमिक एनालिसिस. ओके, सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या बोला जाएगा? सो इट वुड बी करेक्ट टू से दैट कि एनुअल डिमांड फॉर टेलीविजन सेट इन सूरत at a price of rupees 12,000 per piece is 30,000 set. So it include all, that is quantity demand, price of the product, period of time and the place. Okay, तो यहाँ पे आपको quantity demand कितना दिख रहा है? That is 30,000 set quantity demand है. Then price of the product rupees 12,000 per piece दिख रहा है. Then time period, that is annual demand, yearly demand. Okay, and the place तो कहाँ पे? तो सूरत में. So always remember कि demand for the product has always reference to this, that is quantity, price, time period and the place. आया समझ में ये क्वेश्चन? what do you mean by demand? Okay, so first of all demand क्या होता है? Quantity of commodity demanded at certain price at a given time and at a particular place. Okay, so demand for the product has always reference to quantity, price, time period and the place. Okay, so demand का कोई भी statement होगा without reference to price, quantity, time period and place is of no meaning in economic analysis. यानी economics में उसका कोई analysis meaning कोई भी meaning create नहीं होगा. So always demand for the product कि कोई भी statement regarding demand for the product always reference to price, quantity, time period and the place. तो मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया कि फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया कि डिमांड ऑफ टेलीविजन सेट इज व्हाट 50,000 सेट.
तो उसका इकोनॉमिक्स में कोई मीनिंग ही कैरी आउट नहीं होता है, बिकॉज उसमें कितने प्राइस पे, कितने टाइम पीरियड के लिए, कौन से प्लेस पे डिमांड है, कुछ मेंशन नहीं किया है। सो उसका कोई भी इकोनॉमिक्स में मीनिंग कैरी आउट नहीं होता है। ओके, सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा कि एनुअल डिमांड ऑफ टेलीविजन सेट in Surat market at a price of rupees 12,000 per piece, that is per piece is what 30,000 set। तो उसमें सब कुछ आ गया, that is quantity, demand, price of the product, time period and the place। इसीलिए बोला जाता है कि term demand for the product has always reference to quantity, price, time period and the place। Clear? Now next is what definition of demand। Now, easy definition again कि demand for a goods exists only when there is desire for it. Further, buyer should have ability to purchase it and willingness to pay for it. Okay, so remember कि demand in economics implies three things. कि demand in economics implies three things. First is what? Desire for the commodity। ओके, यानी डिजायर यानी हमारी इच्छा, कि हमारा ऑलवेज डिजायर होना चाहिए, हमारी विश होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट होना चाहिए। ओके, दैट इज व्हाट डिजायर फॉर इट। देन बायर शुड हैव एबिलिटी टू परचेज इट, यानी हमारी कैपेबिलिटी होना चाहिए, हमारी एबिलिटी होना चाहिए कि कोई भी प्रोडक्ट का जो हमारी इच्छा है ना, वो हम लोग उसको परचेज कर पाए, उसको बाय कर पाए। एंड थर्ड, विलिंगनेस टू पे फॉर इट, यानी उसकी प्राइस पे करने के लिए वी एज अ इंडिविजुअल हम लोग विलिंग होना चाहिए। सो रिमेंबर कि डिमांड फॉर अ गुड्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर इज डिजायर फॉर इट। Further, buyer should have ability to purchase it and willingness to pay for it. Okay, so demand in economics implies always three things. First is what? Desire for the commodity. Second is what? Ability to buy the commodity. And third is what? Willingness to pay for the commodity. So take an example. My desire is what? To purchase Mercedes car। ये मेरे डिजायर है। ओके, सो डिमांड का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल डिजायर होना चाहिए कि मेरे पास मर्सिडीज कार होनी चाहिए। मैंने क्या किया? मेरा खाली विश एक्सप्रेस किया कि मेरे पास मर्सिडीज कार होनी चाहिए। दैट इज व्हाट डिजायर फॉर द कमोडिटी, दैट इज व्हाट आई वांट टू बाय द मर्सिडीज कार। क्लियर? तो सेकंड क्या होना चाहिए? बायर शुड हैव एबिलिटी टू परचेज इट, यानी मर्सिडीज परचेज करने के लिए मेरे पास एडिक्वेट परचेजिंग पावर होना चाहिए, मेरे पास एडिक्वेट मनी होना चाहिए, 50 लाख रुपीस मनी होना चाहिए, तो ही मैं मर्सिडीज कार परचेज कर पाऊंगा। ओके, एंड अ पर्सन शुड हैव नेसेसरी एंड एडिक्वेट मनी टू परचेज इट, दैट इज व्हाट एबिलिटी टू परचेज इट। एंड थर्ड इज व्हाट? विलिंगनेस टू पे द प्राइसेस। ओके, मेरे पास 50 लाख रुपीस है, बट मैं विलिंग भी होना चाहिए, मैं रेडी भी होना चाहिए कि वो 50,000 वो कार के लिए, मर्सिडीज कार के लिए पे कर पाऊं। इसीलिए डिमांड इन इकोनॉमिक्स ऑलवेज इंप्लाइज थ्री थिंग: डिजायर फॉर द कमोडिटी, ability to purchase the commodity, and willingness to pay for the commodity. Clear? This is what definition of demand. Now next question, डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड डिमांड। ये 2 मार्क्स में आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिजायर एंड डिमांड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डिजायर? कि डिजायर फॉर द प्रोडक्ट इंप्लाइज दैट इंडिविजुअल वुड लाइक टू हैव दैट प्रोडक्ट, दैट इज ही एक्सप्रेस हिज विश और डिजायर टू बाय दैट प्रोडक्ट। सपोज आई एज अ पर्सन, मैं अपना खाली विश में इच्छा दिखाता हूं कि मेरे पास मर्सिडीज कार होनी चाहिए, दैट इज व्हाट डिजायर, मेरा डिजायर। सो डिजायर फॉर द प्रोडक्ट क्या इंप्लाइज करता है? कि इंडिविजुअल वुड लाइक टू हैव दैट प्रोडक्ट, यानी इंडिविजुअल अपना इच्छा दिखाता है कि ये प्रोडक्ट मेरे पास होना चाहिए, ये प्रोडक्ट मुझे बाय करना है, दैट इज व्हाट डिजायर। So desire for the product implies that the individual would like to have that product
it means he express his wish or a desire to buy that product. Whereas demand for the product implies three things, that is desire for the commodity, second ability to buy the commodity, and third willingness to pay for that commodity. ओके, सो डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड में थ्री थिंग्स एग्जिस्ट होना चाहिए. एक तो पर्सन का डिजायर भी होना चाहिए, पर्सन के पास एडिक्वेट मनी दैट इज एबिलिटी टू बाय द कॉमोडिटी भी होना चाहिए, एंड थर्ड इज व्हाट? विलिंगनेस टू पे द प्राइसेस. ओके, अभी यहाँ पे एग्जाम्पल समझना. टेक एन एग्जाम्पल, अ पुअर मैन desire for color television set cannot be called as demand in economics because he desire to have this product but he has not adequate purchasing power to buy that product. ओके, एक पुअर पर्सन है, वो क्या सोचता है कि मुझे कलर टेलीविजन सेट परचेज करना है. ओके, वो अपना इच्छा दिखाता है, अपने डिजायर दिखाता है कि कलर टेलीविजन सेट मेरे पास होना चाहिए. इट इज नॉट कॉल्ड एज डिमांड इन इकोनॉमिक्स बिकॉज ऑल्दो उसके डिजायर है टू बाय, डिजायर है कि कलर टेलीविजन सेट मेरे पास होना चाहिए, बट पुअर पर्सन हैज नॉट एडुकेट मनी टू परचेज अ कलर टेलीविजन सेट. आया समझ में? सो डिमांड में डिजायर भी होना चाहिए और एबिलिटी भी होना चाहिए और विलिंगनेस भी होना चाहिए. क्लियर? सो पुअर मैंने खाली डिजायर बताया कि मेरे पास कलर टेलीविजन सेट होना चाहिए, उसको इकोनॉमिक्स में डिमांड नहीं बोला जाता है बिकॉज वो अपना खाली डिजायर दिखा रहा है कि आई वुड लाइक टू बाय द कलर टेलीविजन सेट, बट उसके पास एडिक्वेट परचेजिंग पावर नहीं है, उसके पास एडिक्वेट मनी नहीं है टू बाय द कलर टेलीविजन सेट. क्लियर? Another example, a rich person desire to travel by air is also not demand in economics because although he has necessary purchasing power to travel by air, but he is not willing to spend the money. आया समझ में? सो एकदम पैसे वाला इंसान, रिच पर्सन है, उसका डिजायर क्या है कि एरोप्लेन में ट्रैवल करना है, ट्रैवल बाय एयर. नाउ अगेन इट इज नॉट कॉल्ड एज डिमांड इन इकोनॉमिक्स बिकॉज जो रिच पर्सन है उसके पास एबिलिटी है टू बाय द एयर टिकट एंड ट्रैवल बाय एयर इन एरोप्लेन. ओके, उसके पास एडिक्वेट मनी है, उसके साथ बहुत सारा पैसा है कि वो एरोप्लेन की टिकट परचेज कर पाए और एरोप्लेन में वो ट्रैवल कर पाए, बट ही इज नॉट विलिंग टू पे द प्राइजेस. ओके, जो रिच पर्सन है ना वो एरोप्लेन के टिकट की प्राइस पे करने के लिए रेडी नहीं है. सो इट इज नॉट कॉल्ड एज डिमांड इन इकोनॉमिक्स. सो लास्टली वी कंक्लूड एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे आर एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट टू डिमांड इन इकोनॉमिक्स. ओके, सो डिमांड इन इकोनॉमिक्स में ऑलवेज एबिलिटी टू बाय द कॉमोडिटी एंड विलिंगनेस टू पे फॉर द कॉमोडिटी होना ही चाहिए. Clear? This is what difference between desire and demand. Clear? Now next question, demand function. Now first of all आपने मैथ्स में पढ़ा होगा that is function. So first of all what is functions? Only functions. Okay? So functions, what is functions? कि functions shows relationship between dependent variable and the independent variable. कि functions always रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन टू वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. ये खाली फंक्शंस का मीनिंग है. तो व्हाट इज डिमांड फंक्शंस? सो डिमांड फंक्शन स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड इट्स डिटर्मिनेंट. नाउ डिटर्मिनेंट्स इज नथिंग बट फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. डिमांड को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिटर्मिनेंट्स. सो डिटर्मिनेंट्स क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. क्लियर? सो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सॉरी डिमांड फंक्शन स्टेट दैट के रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड इट्स डिटर्मिनेंट. सो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट कौन सा वेरिएबल हुआ? डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, एंड द डिटर्मिनेंट्स क्या हुआ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, नाउ आई विल गिव एन एग्जांपल के डिटर्मिनेंट्स.
Now डिटर्मिनेंट्स को डिमांड को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, दैट इज व्हाट डिटर्मिनेंट्स. सो डिमांड को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, प्राइस. क्यों, जैसे प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होगी तो डिमांड में भी चेंजेस आएगा. सेकंड इज व्हाट इनकम ऑफ कंज्यूमर. सो जैसे इनकम में इंक्रीज डिक्रीज आएगा तो भी डिमांड में चेंज आएगा. तो जो डिटर्मिनेंट्स है, फैक्टर्स है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. इंडिपेंडेंट, ओके, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. दैट इज व्हाट इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है. डिमांड किसके ऊपर डिपेंड है, डिमांड डिपेंडेंट है ऑन वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. ओके, यानी जैसे प्राइस में चेंज आएगा तो डिमांड में चेंज आएगा, इनकम में चेंज आएगा तो डिमांड में चेंज आएगा. ओके, कंज्यूमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आएगा तो डिमांड में चेंज आएगा. सो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिटर्मिनेंट्स दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो व्हाट इज डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन स्टेट the relationship between demand for the product and its determinant. So here demand for the product is a dependent variable and the determinants are the independent variable. Thus demand for a product is a function of number of variable. Okay, demand for the product क्या है, it is a functions of number of variable. So demand functions can be expressed in a mathematical equation, that is dx is equal to functions of px comma y comma t comma py to pz comma d comma e comma y bar comma c comma a comma g. It means what, demand for the product x, dx क्या इंडिकेट कर रहा है, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट x, यानी डिमांड फॉर द प्रोडक्ट x क्या है, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल. ये क्या होगा, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और ये जितने भी फैक्टर्स है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. आया समझ में. सो डिमांड फंक्शंस ने क्या दिखाया, रिलेशनशिप दिखाया बिटवीन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड द डिटर्मिनेंट. एंड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड डिटर्मिनेंट क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. ओके, सो उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कैसे लिखा जाता है कि dx इज इक्वल टू व्हाट, dx इज इक्वल टू फंक्शंस ऑफ px कॉमा y कॉमा t कॉमा py टू pz कॉमा d कॉमा e कॉमा y बार कॉमा c कॉमा a कॉमा g. सो हियर dx इज व्हाट, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट x, f इज व्हाट, फंक्शंस ऑफ px इज व्हाट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट x, y इज व्हाट, इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, T is what, taste and preferences of consumers, Py to Pz is what, price of related goods Y and Z, D is what, demography, E is what, expectations about future price, Y bar, income distribution, C, credit facility, A, advertisement expenditure and the government policy. It means what, जैसे ये फैक्टर्स में चेंज आएगा तो डिमांड में चेंज आएगा, जैसे ये फैक्टर्स में चेंज आएगा तो डिमांड में चेंज आएगा. तो ये सब फैक्टर्स कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिमांड कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल. आया समझ में. नाउ जो हम लोग का नेक्स्ट स्लाइड होगा ना, उसमें हम लोग ये हर एक फैक्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. क्लियर. सो होप सो कि आपको समझ में आया होगा यहां तक व्हाट इज डिमांड फंक्शंस. क्लियर. नाउ next topic in the next video, that is what, determinants of demand. Clear?